سندھ کی نئی کابینہ بن گئی۔ 9 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ ایک وزیر موجود نہیں تھے جبکہ 3 مشیروں کا بھی اعلان کیا گیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ میں حکومت سازی مکمل، نئی صوبائی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سرکاری افسران اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ حلف لینے والے وزراء میں عذرا پیچھو، ناصر حسین شاہ، سعید غنی شامل، شرجیل انعام میمن، ضیاء الحسن لانجرا، جام خان شورو، سردار شاہ محمد بخش مہر اور علی حسن زرداری نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام و بہبودی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا۔ استحکام، بہبودی، خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ ذوالفقار شاہ تقریب حلف برداری میں نہ پہنچ سکے۔ 3 مشیر اللہ بخش بیہو، احسان الرحمان مزاری اور نجمی عالم کا اعلان بھی کیا گیا کابینہ میں شامل۔ تقریب حلف برداری کے بعد تمام وزراء اور مشیروں کو محکمہ تفویض کر دیے گئے۔ عذرا پیچھو صحت اور بہبود و آبادی، شرجیل انعام میمن ٹرانسپورٹ، ایکسائز اینڈ نارکوٹکس، ناصر حسین شاہ توانائی منصوبہ بندی اور ترقیاتی، سردار شاہ تعلیم اور معدنیات، سعید غنی بلدیات اور پبلک ہیلتھ، جام خان شورو آب پاشی، ضیاء الحسن داخلہ، سردار محمد بخش مہر زراعت، کھیل اور نوجوانوں کے امور، علی حسن زرداری جیل خانہ جات، جبکہ ذوالفقار شاہ کو ثقافت و سیاحت کا قلم دان سونپا گیا۔ مشیروں میں اللہ بخش بیہو کو جنگلات اور جنگلی حیات، احسان مزاری کو بین الصوبائی رابطہ، جبکہ نجمی عالم کو لائیو سٹاک فشریز اور ہیومن سیٹلمنٹ کے محکمے سونپے گئے۔ سندھ کابینہ کی حلف برداری کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار کراچی آمد۔ صدر نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر آصف علی زرداری نور خان ایئر بیس سے خصوصی طیارے میں روانہ ہو کر کراچی پہنچے۔ فیصل ایئر بیس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی تحریر کیے۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی صدر مملکت کے ہمراہ موجود تھے۔ صدر آصف زرداری کی آمد پر ان کے روٹ اور مزار قائد پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ صدر پاکستان کی سیکیورٹی سندھ پولیس کا اسپیشلائزڈ سیکیورٹی یونٹ سر انجام دے رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری رات کراچی کے بلاول ہاؤس میں قیام کریں گے اور بدھ کی صبح کراچی سے لاڑکانہ روانہ ہوں گے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزارات پر بھی حاضری دیں گے۔ شہر میں گیس کی بندش پر MQM پاکستان نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ متحدہ پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں گیس کی بندش سے روزے دار اذیت کا شکار ہیں۔ MQM پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی نے لانڈھی، کرنگی، گلستان جوہر، نارتھ کراچی، سرجانی، اورنگی ٹاؤن اور کراچی کے مختلف علاقوں میں سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ کراچی جو سب سے زیادہ محصولات کی مد میں وفاق اور صوبے کو رقم ادا کرتا ہے، اس کے عوض اس شہر کو سہولتوں کے نام پر سوائے تسلیوں کے کچھ نہیں دیا جاتا۔ ارکان اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرائی جائے۔ ماہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں یکم رمضان سے ہی اعتکاف اختیار کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان بھر سے تقریباً 3000 سے زائد افراد اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کی رحمت ہر سو، دعوت اسلامی میں پورے مہینے کا اعتکاف، پاکستان بھر سے لوگوں کی شرکت۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے یا خود کو روک لینے کے ہیں۔ یوں تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف اختیار کرتے ہیں۔ فیضان مدینہ میں یکم رمضان سے چاند رات تک اعتکاف کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان بھر سے بڑی تعداد میں فرزندان اسلام اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ رمضان تو ویسے ہی بھی نیکیوں کمانے کا مہینہ، 26 مقامات پر پورے پاکستان میں جو ہے ایک ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب تک کی ہماری جو ہے تقریباً 2200 کے قریب جو ہے رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ مزید بھی آج لاہور سے ایک اسپیشل ٹرین باقاعدہ معتکفین جو ہے ایک ماہ کا اعتکاف کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ ماہ مبارکہ میں سحر و افطار کے ساتھ خصوصی عبادات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک ماہ میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں
की शबान में ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक माह के एहतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह 25 शाबान अल-मुअज़्ज़म से ही शुरू हो चुकी थी। फैज़ान मदीना में तकरीबन 3000 से ज्यादा अफराद मुल्क भर से एहतिकाफ की सादत हासिल करते हैं। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची समेत पाकिस्तान भर में अफ्तार दस्तरख्वान सज गए। शहर कायद के कयूमाबाद फ्लाईओवर के नीचे भी अफ्तार ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने रोज़ा अफ्तार किया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार का एहतमाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुसाफिरों और राहगीरों के लिए इफ्तार ड्राइव का एहतमाम किया गया। कयूमाबाद केपीटी फ्लाई ओवर के नीचे भी पिछले 29 सालों से इफ्तार करवाई जा रही है। मुंतज़मीन का कहना है कि सालों से हम यहाँ इफ्तार करवा रहे हैं। ये इफ्तार सिर्फ गुरबा के लिए नहीं बल्कि हर शहरी के लिए है। इफ्तार के हवाले से हमारी तो खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं है, खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह पाक ने ये साल भी हमें दे दिया। ये 29वां साल है, इसमें लोग शामिल नहीं हैं। एक मुइज़ भाई है, आदिल भाई है, मैं हूँ और मकसद कहने का 2-3 आदमी हैं। ये हमारी तरफ से गरीब के लिए नहीं है, ये इफ्तार पार्टी समझ लो दावत है। जैसे दावत इफ्तार होता है घरों में, जैसे देते हैं ना इफ्तार दावत, तो ये आप पूरी आवाम के लिए जितने भी लोग आए। कराची में मुखय्यर हजरात की जानिब से सड़कों पर मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त इफ्तार का एहतमाम करना अब रिवायत बन चुका है, जहाँ मुसाफिर, राहगीरों और गुरबा बड़ी तादाद में रोज़ा इफ्तार करते हैं। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सैयद सरदार अली शाह ने तीसरी मरतबा बतौर वज़ीर सिंध तालीम का हल्फ उठा लिया है। सरदार अली शाह के साबिक़ा दौर में पाकिस्तान में पहली टीचर लाइसेंस पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। सैयद सरदार अली शाह की बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ़, तीसरी बार वज़ीर तालीम सिंध तकर्रर। सैयद सरदार अली शाह ने अपने सियासी करियर का आगाज साल 2001 से साल 2002 में बल्दियाती इंतखाब से किया। अपने आबाई गाँव यूसी नाजिम मुंतखब हुए और साल 2013 से साल 2018 तक वजीर तालीम की कुर्सी पर बराजमान रहे। साल 2024 में भी सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और वजीर तालीम का ओहदा उनके सुपर्द कर दिया गया। सैयद सरदार अली शाह ने पाकिस्तान की तारीख में 55,000 से ज्यादा जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम की क़यादत की। टेस्ट का इनेकाद इंतहाई मारूफ IBA सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुनक्किदा काबिलियत क्वालिफाइड टेस्ट के जरिए खालिसतन मेरिट पर किया गया। सरदार अली शाह ने पहली टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी मुतारिफ करवाई, जिसकी मई 2023 में सिंध काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी थी। सिंध में वजारत तालीम मुल्क में टीचर्स लाइसेंस मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन गया। सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में 1968 से कायम वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के दफातर को खाली करने का नोटिस, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का एहतजाज, फैसले को वापस लेने का मुतालबा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के दफातर खाली करने का हुक्म, मुलाजमीन का फैसला मानने से इनकार, सरापा एहतजाज। टैक्स रेवेन्यू के दफातर की फरोख्त पर मुलाजमीन का सख्त रद्द अमल। मजदूर रहनुमा सैयद जुल्फिकार शाह बोले, एक जानिब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दुकानदारों को लीज दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब 1968 से कायम दफातर खाली करने का नोटिस दिया गया है। इन दफातर को जो है वो उन्होंने फौरी जो है वो उसमें टैक्स कलेक्शन जो थी वो कोऑपरेटिव मार्केट सदर से होती थी और ये KDA की मिल्कियत थी। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो आए हैं उन्होंने एक नया काम किया है कि एक तरफ तो वो इनको जो है वो दुकानदारों को जो गुज़श्ता साल जो आग लगी थी तो अपनी कोताही छुपाने के लिए उन्हें लीज दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो सरकारी दफातर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, जो ओल्ड सिटी एरिया जिसके कलेक्शन सबसे ज़्यादा है, उस एरिया के कलेक्शन डिपार्टमेंट को वहाँ से शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के अमले का कहना है कि टैक्स दफातर की मुंतकली से ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन और केवाड़ी के मकीन मुतासिर होंगे और 6 करोड़ माहाना की रिकवरी 30% कम हो जाने का खदशा है। टैक्स मामला है वाटर बोर्ड का, हमारे करीब घर के पास ही है, हम वहाँ टैक्स जमा करा सकते हैं। अगर ये दूर दराज चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं वही डहरी में रहता हूँ, खरादार में, हमारे ये वहाँ दफ्तर शिफ्ट नहीं होने चाहिए। ये दफातर हमारे 6 करोड़ रुपया मंथली जो है रिकवरी दे रहा है। यहाँ 3 डिवीज़न हमारे हैं, जो केमाड़ी टाउन, सदर टाउन और ओल्ड सिटी डिवीज़न।
तो अगर यहाँ से ये दफ्तर शिफ्ट होते हैं तो हमारा ओल्ड सिटी डिवीज़न जो है वो 30 से 35%, उसी तरह दूसरे डिवीज़न भी 20 से 25% कम हो जाएंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के दफातर KDA की जानिब से वाटर बोर्ड को मुंतकिल हुए थे, जिन्हें खाली करके मुंतकिल करने को कहा गया है। रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में सीवरेज का मसला संगीन हो गया। रमज़ान का आगाज़ हो गया लेकिन रनछोड़ लाइन चिश्तिया चौक में सीवरेज लाइन मरम्मत ना हो सकी। मस्जिद के वज़ूखाने में गंदा पानी जमा होने के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना है। हमना निसार की रिपोर्ट। कराची में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों को रमजान में मस्जिद जाने की राह में रुकावट बनने लगा। रनछोड़ लाइन चिश्तिया चौक की सड़क पर गटर का पानी जमा हो गया। सीवरेज का पानी मस्जिद के वुजू खाने में भरने लगा। परेशान नमाजियों के लिए गंदे पानी से बचकर जाना चैलेंज बन गया। शहरियों का शिकवा है कि मस्जिद में पानी के नल से भी बदबूदार पानी आ रहा है। पानी काफ़ी रोड पे बढ़ा हुआ है क्योंकि ट्रैफिक का भी मसला है, यहाँ पे ट्रैफिक का रुझान भी रहता है और मस्जिद की लाइन भी मिल गई है, तो इस वजह से नमाजियों को भी मसला होता है वज़ू करने से। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे कोई निज़ाम करे। हमारा रोज़ का मसला है, रोज़ यहाँ सीवरेज की लाइन खुलवाते हैं, रोज़ भर जाता है। ये NJV स्कूल की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी है। ये बच्चों के झूले वूले लगेंगे तो फैमिली कैसे आएगी? ये यहाँ पे सफाई का निज़ाम सही नहीं है। आप यकीन करें कि इस इलाके से गुजरना फैमिली को लेके मुश्किल नहीं, मुहाल है। रही बात मस्जिद की और वज़ू खाने की, आप वज़ू खाने के पानी का नल का चला के देखें, आपको उसमें भी पानी की बदबू आएगी। ये लोग कहते हैं जी आज का हो जाएगा काम, कल हो जाएगा काम, लेकिन कोई इनकी तवज्जो नहीं है। इलाके के काउंसलर फुरकान का कहना है कि हम इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करीबी स्कूल में हॉस्टल बनने के बाद सीवरेज का मसला बढ़ गया है। मसला बहुत गंभीर है। असल में ये NJV स्कूल में जो 400 अफराद का एक हॉस्टल बनाया गया है, ये 400 अफराद का हॉस्टल जो बना है ना, तो इन 400 अफराद को कवर करने के लिए कम से कम 100 अफराद उनके ऊपर होंगे। तो ये 500 अफराद का यहाँ लोड है। इन 500 अफराद का 3 टाइम का खाना यहाँ बनता है, फिर उनका नहाना धोना वाश वगैरह और हर चीज़ उनके लिए। और उन्होंने जो सीवरेज का निज़ाम वही का वही, और 400-600 अफराद इसमें ऐड हो गए हैं। काबीना में एक वजीर की बात नहीं, हमारे लिए सबसे अहम आइनी तरमीम है। MQM ने आसिफ अली जरदारी की सदारती इंतखाब में हिमायत की वजह बता दी। रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी को वोट देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब नहीं मांगेंगे। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। MQM हुकूमत का हिस्सा क्यों बनी? सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत क्यों की? रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने वजह बता दी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी को सदारत के लिए वोट देने के बावजूद MQM पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब मांग रही है। वफाकी काबीना में MQM के एक वजीर की शमूलियत से ज्यादा अहम आईनी तरमीम है। लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं, पानी, बिजली, सीवरेज के मसाइल हैं, उनके स्कूल के एजुकेशन के दूसरे मसाइल हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो तमाम इदारों में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको अप्राइज कर रहे हैं कि जी इलाके की सिचुएशन क्या है, मसाइल क्या हैं, उनको हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। पानी के मसले पर बात करते हुए कहा, पूरे कराची बिलखुसूस जिला कोरंगी में पानी की सप्लाई बहुत कम है। वाटर कॉर्पोरेशन के हुक्काम से मुलाकात का मकसद रमजान उल मुबारक में अवाम को रिलीफ दिलाना है। जॉइंट एफर्ट है हमारी, वो ये है कि ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर जो सिचुएशन डेवलप होती है आमतौर पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पहले उसको एड्रेस किया जाए। MQM रहनुमा का कहना था कि मसाइल के हल के लिए मेयर कराची से भी मुलाकात करेंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी महकमा बराए मौसमी तब्दीली और माहौलियात सैयद आसिफ हैदर शाह का तबादला करके नया चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान का तबादला कर दिया गया है। आसिफ हैदर शाह ने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। आज़ाद नहुड़ियों की रिपोर्ट। आसिफ हैदर शाह को एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया। वो सिंध के 60वें चीफ सेक्रेटरी बन गए। इन्होंने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। सैयद आसिफ हैदर शाह ने बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन, स्पेशल सेक्रेटरी कैंट डिवीज़न, वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत सकाफ़त और वफाकी सेक्रेटरी तवानाई डिवीज़न के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वो पेशा के लिहाज से सिविल इंजीनियर हैं।
انہوں نے IBA کراچی سے MBA کی ڈگری حاصل کی. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے ماسٹرز کی ڈگری اور ہارورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے فیلوشپ حاصل کی. سید آصف حیدر شاہ کی ماضی میں کارکردگی کو بطور کمشنر کراچی اور حیدرآباد معاشرے کے مختلف طبقات نے بڑے پیمانے پر سراہا تھا. آصف حیدر شاہ سندھ حکومت کے کپتان مراد علی شاہ کے بہنوئی ہیں. سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے کے 29 اضلاع کو زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ 14 لاکھ روپے جاری کر دیے. رقم اس ماہ کے دوران زکوٰۃ کے حقداروں میں تقسیم کی جائے گی. آزاد نوہریو کی رپورٹ. سندھ حکومت نے رمضان میں مستحق افراد کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا. زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ 14 لاکھ روپے جاری کر دیے. کراچی کے ضلع شرقی کو 66,68,664 روپے، غربی کو 91,05,836 روپے، جنوبی کو 41,67,474 روپے اور وسطی کو 69,14,598 روپے جاری کیے گئے. کراچی کے ضلع ملیر کو 46,73,230 روپے اور کورنگی کو 57,14,820 روپے جاری کیے گئے ہیں. ضلع حیدرآباد کو 51,19,944 روپے، مٹیاری کو 17,89,084 روپے اور ٹنڈو محمد خان کو 15,75,196 روپے جاری کیے گئے ہیں. ضلع ٹنڈو الیار کو 19,46,158 روپے، بدین کو 41,97,552 روپے اور ٹھٹا کو 22,79,244 روپے فراہم کیے گئے ہیں. ضلع دادو کو 36,06,018 روپے، جامشورو کو 23,10,436 روپے اور میر پرخاست کو 35,02,416 روپے جاری کیے گئے ہیں. ضلع تھر پارکر کو 38,36,616 روپے، عمر کوٹ کو 24,96,474 روپے اور سانگڑ کو 47,84,630 روپے جاری کیے گئے ہیں. ضلع لاڑکانہ کو 35,45,862 روپے، کمبر شہداد کوٹ کو 31,19,200 روپے اور جیکباد کو 23,40,514 روپے جاری کیے گئے ہیں. سندھ حکومت نے ضلع کشمور کو 25,33,236 روپے، شکارپور کو 28,64,094 روپے اور سکھر کو 34,60,084 روپے جاری کیے گئے ہیں. ضلع خیرپور کو 55,95,622 روپے، شہید بے نظیر آباد کو 37,51,952 روپے اور نوشہر و فیروز کو 37,50,838 روپے دیے گئے ہیں. ضلع گھوٹکی کو 38,31,046 روپے اور سجاول کو 18,19,162 روپے فراہم کیے گئے ہیں. آزاد نوڑیو، سٹی 21.